point number first. That is no manner foreign. And it is a spontaneous overflow of powerful feelings recollecting tranquility. I have already told you that this is the definition of, it is the definition that is given by, it is William Wordsworth. William Wordsworth. This is the famous definition that is given by William Wordsworth. And हमारा topic है now. The topic is, it is about what? It is, that is called the no manner foreign. No manner foreign, it is about what? ये है किसके मुद्दे? As far as no manner foreign is, it is about called, it is about what? It is about the universal brotherhood. Universal, that is called brotherhood. Universal brotherhood is the need of the hour. Universal brotherhood is the need of the hour. Roundabout is, अगर आप इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन में देखोगे, प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में देखोगे, there are lots of wars that are going on between the different nations or between the different countries of the world. बहुत सी जंग हो रहे हैं. For example, take the case of, take the आज हो रहा है, it's a war that is going on between Russia and it is Russia and it is, that is the war that is going on between Russia and Ukraine. And there are a lot of wars. India and Pakistan, they have fought at least 3 wars over the issue. Means दुनिया में लोग, दुनिया में these very countries, they are fighting with each other. वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? लड़ाई कर रहे हैं. And what? Why they are fighting with each other? वो क्यों एक दूसरे से लड़ाई करते हैं? The biggest reason is they want to be the powerful nations of the world. Number first one is, they want to gain the what? Why the different countries, why they fight with each other, why they fought the wars with number of the countries? Number, to become the powerful. To become the powerful. Number second, to take control over the resources. To take control over the natural resources. Over the natural resources. आप देख लेना, आज इस्राइल फलस्तीन पर अटैक कर रहा है, उसको वहां के लोग नहीं चाहिए. दैट इस्राइल, इट नीड्स व्हाट? इट नीड्स द टेरिटरी ऑफ किसकी? फलस्तीन. मिडिल ईस्ट में देयर इज हसल एंड बसल, देयर आर ऑल द क्लाउड्स ऑफ द वॉर इन द मिडिल ईस्ट. अरब कंट्रीज में हर हमेशा क्या चल रहा है? वॉर चलता आ रहा है. कभी अमेरिका वॉर कर रहा है वहां पे, कभी रशिया कर रहा है, कभी वन और द अदर कंट्रीज या वेस्टर्न कंट्रीज, they are fighting. अमेरिका ने जिसमें इराक में हमला किया, बिकॉज ऑफ व्हाट? उसको वहां के क्या चाहिए? नेचुरल रिसोर्सेज. उसको वहां की ऑयल चाहिए, उसको वहां की गैस है. मीन्स दुनिया में व्हाई people are these countries, they are fighting with each other. वो एक दूसरे से लड़ाई करते हैं. and the biggest reason is वो क्या करना चाहते हैं? वो कंट्रोल करना चाहते हैं किनके ऊपर? नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर. ये थोड़ा सा अबाउट किसके मुतालिक था? नो मैनर फॉरेन. थोड़ा सा अब है. Actually, no manner foreign is not talking about these very issues. अब ये किसने? ये कह रही है इस वक्त जो वर्ल्ड को चाहिए, जो दुनिया को चाहिए, so that everyone can live a peaceful life. दुनिया में इंसान को क्या चाहिए ताकि वो इंसान क्या रह सकता है? सुकून से इंसान अपनी जिंदगी बसर कर सकता है. एंड वो है, दैट्स अ यूनिवर्सल ब्रदरहुड इज द नीड ऑफ आवर. यानी कि वक्त की जरूरत है हमेशा. यानी वी शुड नॉट बी डिवाइडेड. कोई होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई होता है इंडियन का, कोई होता है पाकिस्तानी होता है, कोई होता है चाइनीज का, एंड सम सिटीजन्स दे बिलोंग टू अमेरिका, सम आर फ्रॉम द रशियन कंट्रीज, सम आर फ्रॉम द मिडिल ईस्ट कंट्रीज. हमें क्या है? वी लव आवर नेशन. हमें अपने नेशन से क्या होता है? वी लव आवर नेशन. फॉर एग्जाम्पल आवर नेशन इज इंडिया एंड वी हैव टू शो आवर लव टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स इंडिया. एंड ये कह रहा है हमें अपने मुल्क से प्यार होता है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमें दूसरे मुल्क से क्या होता है? नफरत. यानी कि वी आर वी हैव बिकम सो मीन दैट वी ओनली एंटरटेन, वी ओनली एक्सेप्ट दैट आवर नेशन इज द बेस्ट नेशन, that our citizens are the best citizens of the world, and the citizens of other countries जो बाकी मुल्कों के citizens हैं, they don't deserve to be the human beings. हम उनको human beings नहीं समझते. एंड यही वो रीजन है जिसकी वजह से एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ क्या कर रहा है? लड़ाई कर रहा है.
जेम्स किरकप, ये वाली जो पोम है, इट इज रिटन बाय व्हाट? इट इज रिटन बाय जेम्स किरकप। इट इज रिटन बाय जेम्स किरकप। क्या था? ही वाज अ ब्रिटिश, he was a British novelist, he was a British poet। वो क्या था? वो एक ब्रिटिश पोएट था। कौन था? जेम्स किरकप। इसने कहा है कि अगर लोग ये समझेंगे, if all the people they will think that we are the citizens of the world, we are the citizens of the world। अगर सभी लोग समझेंगे कि हमें अल्लाह ने बनाया है, Almighty Allah has created us, and it is not Almighty Allah that has divided us into number of the country। जब अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया, अल्लाह ताला ने इस दुनिया को डिवाइड नहीं किया है। किसी को इंडियन बनाया है, किसी को ये अमेरिकन बनाया है, किसी को चाइना में पैदा किया। अल्लाह ताला खुद नहीं आया इस दुनिया में, and he has divided the human beings। It is we human beings who has divided them। ये वो इंसान है जो इंसान ने इसको क्या किया है? डिवाइड किया है। ये वाली लैंड यहाँ पे इंडिया की है, ये वाली लैंड ये वाला चाइना वाला है, ये वाली लैंड ये वाली अफगानिस्तान की है, ये वाली चाइना ये है फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश की। सो हमने इट इज वी ह्यूमन बीइंग्स हु हैव डिवाइडेड द लैंड। अलबत्ता Almighty Allah created us that we should live our life just like the true brothers। हमें आपस में क्या करना चाहिए? हमें बड़े प्यार से अपनी जिंदगी गुजार। एंड जेम्स किरकप क्या कर रहा है? जब वर्ल्ड वॉर सेकंड के आफ्टर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकंड, एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकंड, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड हुआ, एंड इसमें से क्या हुए? lakhs and lakhs of the people died because of what? Because of the world war। इस वर्ल्ड वॉर सेकंड की वजह से बहुत से लोग मर गए। एंड दिस वेरी द डेथ, द डिस्ट्रक्शन, द हैवक, द कैटास्ट्रॉफी, द डेवास्टेशन दैट हैज बीन caused by the world war second। जो वर्ल्ड वॉर सेकंड की वजह से डिस्ट्रक्शन हुई है, एंड जेम्स किरकप वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस। इन चीजों का असर हुआ। इन्हें कहा why the people, why they are and what for they are fighting with each other। ये लोग आपस में जंग क्यों कर रहे हैं? इतने लोग मरे because of what? Because of the wars, because of the particular nation। हम कह रहे हैं मैं एक कंट्री का सिटीजन हूं, एंड मैं कह रहा हूं माय कंट्री इज द बेस्ट कंट्री, एंड मैं क्या कर रहा हूं? व्हाट आई एम डूइंग? आई एम हेटिंग द अदर कंट्री। और मैं हेट रखता हूं किसके साथ? दूसरे मुल्क से। ये कह रहा है यही वो, दिस इज द बोन ऑफ द कंटेंशन। यही मसले की जड़ है कि हमें अपने मुल्क से प्यार है, एंड वी आर नॉट लविंग द सिटीजंस दोज हु आर लिविंग इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एंड इसी की वजह से क्या हो रही है? लड़ाइयां हो रही है, एंड जंग हो रही है। नहीं तो ऑल ह्यूमन बीइंग्स, जेम्स किरकप कह रहा ऑल ह्यूमन बीइंग्स, चाहे whether the person living in Asia or whether the person living in Australia, ये कह रहा वहां पे भी these persons, the people who are living on the Earth's planet, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है? They too have the eyes, two eyes, they have one nose, they have two arms, they have what? They have the two legs। If all the human beings they breathe the same air, they are living on the same earth as we are living, वो भी जमीन पे ही बसते हैं, एंड हम भी किस पे ही बसते हैं? जमीन पे ही बसते हैं। हम भी वही सांस लेते हैं जो लोग कहां पर रहते हैं? other parts of the world। Then if we are same, our complexion is not same, maybe the color, maybe there will be the variation, there will be difference of the color। कोई काला होगा, कोई सफेद होगा, एंड कोई something else होगा, या कोई मेल होगा या कोई फीमेल होगा। नहीं, we all human beings are same। If our complexions, if our physical appearance is same, then what is the cause of, then why हम लोग आपस में क्यों कर रहे हैं? क्या ये कह रहा है? अगर हम समझेंगे, नो कंट्री, नो वन इज फॉरेन, एंड नो कंट्री, नो वन इज स्ट्रेंज, एंड नो कंट्री फॉरेन। अगर ये हम समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई आता है, a person travels from the one corner of the world, for example we are giving the example of the India। कोई आता है कहां पे? कोई फॉरेन आता है इंडिया में। अगर हम ये समझे नहीं ये इंडिया भी उसी का मुल्क है, कोई जाता है दूसरे किस कंट्री में, वो कहेंगे नहीं ये कंट्री भी उसी की है। हमें क्या चाहिए? इन ऑर्डर टू सेटल डाउन इन अदर कंट्री वी हैव टू
We need the visa. We should have the passport. हमें passport चाहिए. We need the sanction. We need the permission. We need the license in order to visit these very countries. ये कह रहा है ये उसी की वजह से, क्योंकि हम ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं अपने किस में, नेशनैलिटी में, अपने पैट्रियटिज्म. नो डाउट वी शुड हैव द पैट्रियटिज्म टुवर्ड्स आवर नेशन. हमें अपने मुल्क से प्यार होना चाहिए, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ दिस वेरी पैट्रियटिज्म वी शुड नॉट किल द अदर्स. वी शुड नॉट स्लॉटर द ह्यूमन बीइंग्स ऑन द नेम ऑफ व्हाट, ऑन द नेम ऑफ वनस कंट्री. हमें मुल्क के बिना पर, अपने मुल्क के बिना पर दूसरे लोगों का क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, कत्ल नहीं करना. He is saying this very planet, it has been created by the Almighty Allah and it is the human beings who have defiled it. Who have defiled it. ये कह रहा है ये वाला जो planet है, and man has been called what, इंसान को कहा गया he has been called crown of creation. उसको इस creation का क्या बनाया गया है, king, because he has been given what, he has been given what, the reasoning power. इसे reasoning power दिया गया है. Reasoning power means to find the difference between good and bad, to find the difference between animal and a human being, to find the difference between black and a white. And ताकि इसको एहसास हो जाए, इस्लाम में जो सारे को सबसे बड़ा गुनाह है कि अगर कोई इंसान किसी इंसान का नाहक कत्ल कर दे. एंड ये क्या है, ये सबसे एक इंसान, a human being should never kill a human being. At least no doubt whether he belongs to the Hinduism, he belongs to the Christian, or he belongs to some other religion. We are all human beings and on the basis of religion. मजहब की बुनियाद पे, कास्ट की बुनियाद पे, कलर की बुनियाद पे, जेंडर की बुनियाद पे, सेक्स की बुनियाद पे, we should never fight with each other because Almighty Allah has created all the human beings इक्वल. एंड वही कह रहा है ये जो प्लेनेट है ये बनाया है अल्लाह ने हमारे लिए, लेकिन हम ही वो लोग हैं जो इस धरती को क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं. आप देखो राउंड आउट, आज ग्लोबल वार्मिंग इज अ बर्निंग इश्यू. इट इज द नीड ऑफ द आवर, दैट इट इज द नीड ऑफ द आवर, इट शुड बी टैकल्ड. आज आप ग्लोबल वार्मिंग, ये ग्लोबल वार्मिंग अल्लाह ऊपर से आ रहा है, वो ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है. ये एनिमल्स कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ये ह्यूमन बीइंग्स. हम ही अपने प्लेनेट को, हम ही अपनी लाइफ को क्या कर रहे हैं. अमेरिकन का एक साइंटिस्ट था, एक फिलोसोफर था, उससे कहा जाता है दैट इज कॉल्ड शीटल. इसने कहा when all the water and all the fishes gets polluted, then you can realize that money cannot be eaten. ये कह रहा है जब सब कुछ पोल्यूट हो जाएगा, इंसान को उस वक्त एहसास हो जाएगा कि जो मैं कर रहा था for my personal gains, I was actually indirectly I was hurting myself. मैं अपनी existence का ही क्या कर रहा था, सबसे बड़ा नुकसान कर रहा. That's all.